Assalamu alaikum students. Today I am doing the remaining questions 6, 7th, 8, 9 or 5.3. Previously we have done question number 1, 2, 3, 4 and 5 of exercise 5.3. Okay. So what is question number 6? I am reading the remainder after dividing the polynomial p of x is by x plus 1 is to b. Calculate the value of a and b if this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. Okay. Students, first you need to know that what you have to find. Okay, you have to find the value of a and value of b. Okay, right? Then next there are two constants in this question, and you know, for if two constant, then there should be two conditions which are present in your question to find the value of a and b. So what are those conditions? Those conditions पे मैं आपको explain कर दूँ. Your first condition is here that when p of x is divided by x plus 1, your remainder is book remainder is 2b. Okay, first आप वही by applying remainder theorem you will put this value of x in this one, and you will get a remainder and equate remainder to this remainder. Okay, from there you will get first equation. Then second is what is your second condition? Second condition is that calculate the value of e and b if leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. सेम आप इसी पॉलिनोमियल को जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आपका डिफरेंट आएगा. ठीक है, देर आर टू रिमाइंडर्स. x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा. ओके, चलिए लेट्स डू कैसे करते हैं हम. सो व्हाट इज गिवन? इन गिवन यू विल राइट द पॉलिनोमियल. देर आर टू गिवन्स. पॉलिनोमियल डिवाइड बाय दिस इज टू बी and leaves the remainder of b plus 5. These two statements you will write in given. What is required? The required is very simple. Required में आप लिख लेंगे value of a and b. Okay, ये आपके पास required आ जाता है. फाइन. सो इन सोल्यूशन में आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आप लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन अप्लाई करेंगे. यू विल रिमाइंडर थ्योरम ऑन द same polynomial, right students? Same polynomial is same. So solution, what is polynomial? Given this is your polynomial ax square plus 7. क्या करना है हमने? Putting x is equals to, क्या पुट करना है आपने यहाँ पर? आप पुट कर लें, मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ था कि रफ में इसको इक्वल टू 0 करें. दिस इज़ माई डिवाइज़र. व्हेन यू डिवाइड दिस बाय दिस, ओके, x इज़ इक्वल्स टू -1. पुटिंग x इज़ इक्वल्स टू -1 और नेम दे दें इसको आप. आई एम गिविंग नेम टू दिस इक्वेशन एज a. ओके, in a. So p of -1 is equals to -1 whole cube plus a into -1 whole square plus 7. p of -1 plus a plus 7. p of -1 is equals to 7 minus 1 6 plus a. Right, this is my remainder. Okay, this is your remainder, right? But what is given? Given what is book remainder वो भी हम देख लेते हैं. But so यहाँ बता देते हैं. Therefore remainder is equals to a plus 6. Okay students, you have to remember this is your remainder. But given, what is given? But given remainder is equals to उन्होंने कहा है the remainder after dividing the polynomial by this is 2b. Okay students, this is remainder when you divide this polynomial by this one. Okay, but given what is remainder? Remainder हमारे पास क्या आ रहा था? 2b. So your remainder is this one
book remainder is this one. It means these two remainders are equal. You can compare these two remainders, or you can put this value in putting this value of remainder in this equation. ठीक है, तो मैं दोबारा से कर लेती हूँ. Therefore to be, और यहाँ पर a plus 6 लिख लेती हूँ. It's better. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ this putting वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. कौन सा रिमाइंडर? जो आपका रिमाइंडर आया. ओके, दिस इज़ योर ग्रीन मार्कर यूज़ कर लेती हूँ. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर गिवन इक्वेशन. ठीक है, ये गिवन इक्वेशन आ रही है. इसमें आपने क्या करना है, रिमाइंडर की जगह ये जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, ओके, ये वैल्यू पुट करनी है, इस रिमाइंडर की वैल्यू. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस रिमाइंडर आई एम राइटिंग a plus 6 इज इक्वल्स टू 2b. और आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा. दिस इज़ योर रिमाइंडर, दिस इज़ बुक रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर. ओके, रिमाइंडर इज़ 2b, दिस इज़ बुक रिमाइंडर. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर आ रहा था आपने यहाँ पुट कर देना है. बाय ट्रांसपोर्टेशन व्हेन यू शिफ्ट दिस माइनस इट बिकम माइनस 2b, एंड प्लस 6 व्हेन यू शिफ्ट टू द अदर साइड इट बिकम्स माइनस 6. ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज़ माई first equation. Okay, so from first condition I get this first equation, right? Now for second equation के लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या करना है. First again, student, second condition is this. If this expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2, it means कि when you divide the same expression को जब आप ये वैल्यू x की पुट करेंगी तो उस वक्त रिमाइंडर वो आएगा. रिमाइंडर हम बाद में देखते हैं, पहले हम उसमें x minus 2 is equals to 0, so x is equals to 2. हम इसी एक्सप्रेशन में you have one expression and you have two divisors, okay, and obviously two remainders. So putting x is equals to 2 in a, आप ये दोबारा से लिखेंगे पॉलिनोमियल. अगेन p of x से लिख के और फिर से कर लें, या नहीं भी लिखते तो a में पुट कर दें, डजेंट मैटर. p of 2 whole cube plus a plus 7, so 8 plus 4a plus 7 p of 2, which is equals to p of 2 is equals to 8 plus 7 15 plus 4a, right? अब वही हमने काम करना है. therefore your remainder, ठीक है, my remainder is 4a plus 15, but given, what is given, that remainder is equals to, yes, now see students, remainder, ये देखिए, this is remainder, और क्या दिया हुआ है, remainder of b plus 5. this is remainder, this is your remainder. okay, remainder का word दिया हुआ है, and then आगे b plus 5 on being divided by this, so your remainder, book remainder is b plus 5. अब वही काम हमने किया, putting value of remainder, ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, दिस वन, ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट करनी है इसकी जगह. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग दिस रिमाइंडर 4a plus 15 is equals to b plus 5. By transportation, 4a minus b, 5 minus 15, so 4a minus b is equals to minus 10. This is my second equation. See girls, you got two equations from these two conditions. Now I will solve these two equations for finding the value of a and b. वो हमने कैसे करनी है, a और b की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. as again equations लिख लें, as you have a minus 2b is equals to minus 6. this was your first equation.
4a minus b is equals to minus, this was your second equation. ठीक है, so I am using by substitution method, I am finding the value of a and b. ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा by substitution method. What is substitution method? वो ये होता है कि from 1 if you want to find the value of a, unknown है, a भी unknown है, b भी है, किसी भी a की वैल्यू ले लें, a की वैल्यू ले लें 1 से लेंगी तो पुटिंग इन 2, और अगर सेकंड से आप a और b की वैल्यू ले लेती हैं तो पुटिंग इन 1 करना है, राइट. यूजुअली ये कोशिश किया करें, उसकी वैल्यू लिया करें विच इज़ फ्री फ्रॉम कोफिशेंट. लाइक इन फर्स्ट आई कैन टेक द वैल्यू ऑफ a बिकॉज b के साथ कोफिशेंट है, तो वो डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. सिमिलरली अगर 2 में से मुझे आई हैव टू सपोज टू टेक एनी वैल्यू, तो मैं a की नहीं लूँगी बिकॉज a के साथ कोफिशेंट 4 है, वो बाद में डिवाइड हो जाता है. b has coefficient 1, so if I want to take the value of any known constant from 2, so I will take or I will go for this b, right. So I'm simpling I'm very simple, I'm going to take the value of a from 1. लिख लीजिएगा a. Look, a is here, this is my first equation. ये a देखें, ये a लिखा हुआ है, a वहीं पर रखा है मैंने, this is a, ओके. और आई शिफ्ट दिस टू बी टू द अदर साइड, ए को अलोन रखें, तो -6 वॉज ऑलरेडी देयर ऑन योर राइट हैंड साइड एंड आई ट्रांसपोर्ट दिस टू बी टू अदर साइड, इट बिकम्स +2b. ओके, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a in 2. रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट से वैल्यू ली है तो उसको सेकेंड में पुट किया, ये a की वैल्यू आप समझ आ गई होगी. a वहीं पर है, -6 on the a and -6 they are on the same position, just I transport this -2b to the other side, right. So putting value of a in 2 में पुट कर देते हैं. कैसे पुट करते हैं यहाँ देखिए, 4 into instead of a you will put -6 + 2b minus b is equals to -10 -24 plus 8b -10, so 7b, 8b minus b and -10 plus 24, 7b is equal to 14 and b is equals to 14 by 7, so b is equals to 2. This is my first unknown, that is b. यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू आई है, ठीक है. अब आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन एनी इक्वेशन, 1 में पुट कर दें और 2 में पुट कर दें, इट्स अप टू यू. तो ऐसा करते हैं, 1 इज़ सिंपलर इक्वेशन, हम 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ से ऑनवर्ड क्या लिखूँगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ b, मैं ये मैं रेस कर रही हूँ, ठीक है. b क्या था मेरे पास, b वॉज 2. ओके, पुटिंग यहाँ से ऑनवर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन 1, ठीक है. b की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 में पुट कर दें. नाउ 1 इज़ दिस वन, a इसको 1 को दोबारा लिख लें. दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, a एज इट इज़ -2. व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b, 2 एंड -6, सो a -4 इज इक्वल्स टू -6. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू -6 + 4, a इज इक्वल्स टू -2. ओके. और in case paper में if your this question is unseen or they may change your this polynomial or the divisor or anything remainder, so आपको confirm नहीं है what is value of a and b, you just go for check method, that is you will put or you can check by putting the values of a and b in these two equations as you have done in your Cramer's rule or in word problems. अगर ये equations आपकी satisfy आ रही हैं, हो रही हैं, it means your the values of a and b they are correct. Okay, so this is question number 6. I hope students समझ आया होगा आपको. एक बार फिर सुन ले क्या किया है. सेम डिविडेंड है आप स्टूडेंट्स के पास, ठीक है. डिविडेंड इज सेम and you have two divisor, one is this one and other is this one, and again obviously आप जब put करेंगे इसको इसमें तो you will get a remainder which is equals to this one
और सेकंड अगेन सेम एक्सप्रेशन को जो इससे आप इस वाले को पुट करेंगे, यू विल गेट अ रिमाइंडर एंड यू विल इक्वेट दैट रिमाइंडर इक्वल्स टू दिस बुक रिमाइंडर, और सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। आई होप ये सब्सटीट्यूशन मेथड आपको समझ आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 6, नाउ कम टू इट्स क्वेश्चन नंबर 7. Okay, now question number 7th. Question number 7th. I'm reading the polynomial x cube plus this plus this plus this has a factor x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by this. Find the values of L and M. Obviously, students, you have to read the whole statement completely, and then you will come to know that what is your required is find the values of L and M. Here two things are required. The value of L and two unknown numbers आपको नज़र आ रहे हैं, variables constant नज़र आ रहे हैं, L and M. Again, you know, when you have two unknown, you have to find the values of two unknown. तो हम क्या करते हैं, in question there should be two conditions. Okay, so हम ढूंढते हैं what are those condition. First condition is students, to get first equation, the polynomial, this is your polynomial, okay, has a factor. This is your first condition. Okay, it has a factor. What is meaning of factor? Factor means remainder is equals to 0. Obviously when you put this x is equals to -4 in this equation, तो आप remainder को 0 कर देंगे because it is given that x plus 4 is a factor. Okay, this is first condition to get first equation. तो पहले मैं उसको solve करती हूँ. So in given you will write the whole statement. This is first condition, leaves a remainder of 36 when divided by this. This is second condition, whole from this to this आप given में लिखेंगे, and required is values of L and M. This is your required, ये required में लिखेंगे. मैं solution से start करती हूँ. given इसको आप नेम दे देंगे, यहाँ p of x नहीं कहा हुआ, so let कर लेते हैं, या as let कर लेते हैं. p of x is x cube lx square mx plus 24. Okay, has a factor. This is your divisor. Okay, dividend and divisor. तो रफ में हम देख लेते हैं. when I equal to 0, the value of x is equals to -4. So putting -4, name this equation as a. in a में आप पुट कर लेंगी p of -4 whole cube whole square -4 plus 24. So p of -4 is equals to, हमारे पास क्या आ रहा होता है, -4 cube of -4 is -64 plus 4 4s are 16 and 16l minus 4m plus 24. As students, I have told you in my previous one of my previous video that negative having cube is negative and negative having odd power, negative having odd power is negative and negative having even power is positive. So p of -4 is equals to 16l minus 4m. ये two variables मैंने पहले लिख लिए, and constant -64 plus 24. p of -4 16l minus 4m -64 and plus 24 मेरे पास क्या आ जाएगा, 440 and -6 -40. ओके, यहाँ पर मैं रफ में लिख लेती हूँ 16l minus 4m minus 40. ओके, दिस इज़ माई रिमाइंडर. बट वट इज़ गिवन, ये तो आपका रिमाइंडर आया. गिवन में उन्होंने कहा है दैट इट x plus 4, दिस इज़ अ फैक्टर. ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन टू फाइंड फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब मैं ये रेज कर रही हूँ. मैं यहाँ पर आगे जाऊँगी अपने रिमाइंडर 16l minus 4m minus 40. ओके, तो हमारे पास आ जाता है, उप्स मुझसे वो भी रेज हो गया, चलें इट्स ओके. देयरफॉर रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था, हमारा रिमाइंडर आ रहा था 16l minus 4m minus 40. ये हमारा रिमाइंडर था. बट इट इज़ गिवन, व्हाट इज़ गिवन, आपके पास गिवन है या इट इज़ गिवन, कुछ और दें. बट गिवन x plus 4
इज अ फैक्टर, ठीक है। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. It's better, students, if you write this statement with a blue marker or underline with a blue marker, okay. You know, the first condition क्या थी, given x plus 4 is a factor, therefore remainder is equals to 0. book का remainder 0 आ रहा है, our remainder is 16l minus 4m minus 40, हमने इसको equal to 0 कर दिया क्योंकि remainder उन्होंने कहा 0. कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशन और सिंपल बन जाए. 4 इज़ कॉमन, minus m minus 10 is equals to 0. So you know, as 4 is not equal to 0, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, as 4 is not equal to 0, therefore 4l minus m minus 10 is equals to 0, or 4l minus m is equals to 10. This is my first equation. Students, here what I have done, you know that product of two number is equals to 0. If product of two number, it means first is equals to 0 or second is equals to 0. But here you know 4 is a not 0 number, it is not equal to 0. It means कि my this second factor is equals to 0. m 10 ट्रांसपोर्ट किया, so this is my equation number 1. मैं equation number 1 यहाँ लिख लेती हूँ. Equation number 1 is 4l minus m is equals to 10. First condition से I got first equation. I hope students ये first condition और first equation clear होगी कि हमने अपना remainder निकालना है और book में जो condition है उसके remainder के according हमने चलना है, वहाँ से equation 1 आएगी. Now come to its second condition. Again, as you know, p of x, x cube lx square mx प्लस 24 ये हमारे पास आ रहा है, हैज़ अ फैक्टर. ये तो फर्स्ट हो गया. नाउ सेकंड कंडीशन के लिए फिर मैं आई थिंक ब्लू मार्कर यूज़ कर लेती हूँ. कहता है इट लीव्स a remainder of 36 when divided by x minus 2. Again polynomial is same, dividend is same, means first time आपने क्या किया था, first time you divide this or putting the value of x minus 4 तो factor था, remainder 0 है. second condition, second equation is कि आपने इसी इक्वेशन में पुट करना है x is equals to 2 by remainder theorem. तो आपका रिमाइंडर जो भी आएगा और बुक के रिमाइंडर उनको देख लेना है. ओके, सेकेंड कंडीशन ये है. सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू, रफ में देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लें हम. इन इसको मैंने a कहा हुआ था प्रीवियसली, सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन a, देयरफॉर p ऑफ 2 होल क्यूब 2 whole square plus 24, 8 plus 4l plus 2m plus 24. So p of 2 is equals to, मैं ये पहले लिख रही हूँ, 4l plus 2m and 8 plus 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, 32, राइट. ये हमारा रिमाइंडर आया है. नाउ आई कंपेयर माई रिमाइंडर विद बुक कंडीशन. ओके, मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेती हूँ, 4l plus 2m plus 32. सो यहाँ पर लिख लेती हूँ, therefore remainder, my remainder is 4l plus 2m plus 32. This is my remainder, but given, what is given, that remainder is equals to 36. Look students, this is given, ये दिया हुआ है, ठीक है. दिस इज बुक रिमाइंडर, ये बुक का रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर 36 है. माई रिमाइंडर इज दिस वन, बुक्स रिमाइंडर इज 36. सो आई विल कंपेयर दीज टू. अगेन आप इसको अंडरलाइन कर लें और मार्कर से लिख लें. सो मैं क्या करूँगी, ये अपने दोनों रिमाइंडर इक्वेट कर दूँगी और I put the value of this remainder in this instead of this remainder. ओके, ठीक है. मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ, किसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ. सो रिमाइंडर जो मेरा रिमाइंडर आ रहा था, 4l plus 2m plus 32 is equals to 36. 4l minus 36, एक इक्वेशन बनाते हैं. यू हैव कांस्टेंट ओवर हेयर एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू हैव कांस्टेंट.
4l 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैं इसको और सिंपल बना लेती हूँ बाय टेकिंग 2 कॉमन ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इसको, इरेज कर देते हैं। रिमाइंडर क्या आ रहा था, so 4 is common, 4 no 2 is common, 2l plus m minus 2 is equals to 0। और मेरे पास आ जाता है as 2 is not equal to 0, product of two numbers is equal to 0, it means first is equal to 0 but first is not equal to 0, therefore second 2l plus m minus 2 is equals to 0 or 2l plus m is equals to 2। This is my second equation। okay, so from two conditions I got two equations। अब इन equations को solve करते हैं same method by substitution method। और substitution method फिर मैं explain कर देती हूँ अगर आपको previous question में समझ नहीं आया। कौन सी equations थी मैं उनको इकट्ठा लिख लेती हूँ। 4l plus 2m plus 32 ये तो हमारा रिमाइंडर आ रहा था। 4l माइनस m इज इक्वल्स टू 10, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आई थी 2l प्लस m इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन आई थी। सो आई एम सॉल्विंग दिस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी एक अननोन की वैल्यू लेते हैं फ्रॉम वन इक्वेशन और फ्रॉम टू, इट्स अप टू यू, ठीक है। एंड कोशिश किया करें कि उस कांस्टेंट की वैल्यू लें विच हैव लीनियर कोफिशिएंट, मींस वन कोफिशिएंट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ एल की भी ले सकते हैं, एम की भी ले सकते हैं, बट एल में कोफिशिएंट 4 आ रहा है तो वो आगे आपको प्रॉब्लम देगा। मैं 2 से वैल्यू लेती हूँ, एम में नेगेटिव साइन आ रहा है सो 2 से वैल्यू लेती हूँ और फ्रॉम 2 वैल्यू ले रही हूँ और 1 में पुट कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर 1 से वैल्यू लेते हैं तो फिर 2 में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम 2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एम को मैं यहीं रखा, एम इज़ ऑन द सेम प्लेस, 2 is also on the same place right hand side पे m और 2। मैंने क्या किया, आई शिफ्ट दिस 2l टू द अदर साइड, तो प्लस 2 जब उधर गया इट बिकम्स माइनस 2l, ये वैल्यू आ गई। पुटिंग किस में पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन 1, ठीक है। 2 से वैल्यू ली है तो 1 में पुट करना है, सो 1 में पुट कर देते हैं। 4l माइनस, चले 1 एक बार फिर लिख लेते हैं। 4l माइनस m की क्या वैल्यू आ रही थी, 2 माइनस 2l इज इक्वल टू 10, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से m की वैल्यू ली, राइट, और फर्स्ट में पुट कर दिया मैंने। ये रूल है सब्सटीट्यूशन मेथड का, अगर फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं तो सेकेंड में पुट करेंगे और सेकेंड में से लेते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे। सो 4l माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2l इज इक्वल टू 10। इसको सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, राइट। सिंपल मेथड से सॉल्व कैसे कर लेंगे हम, 2 और यहाँ पे मेरे पास आ रहा था 4l प्लस 2l 6l और माइनस 2 इज इक्वल टू 10, देन 6l इज इक्वल टू 10 plus 2, 6l is equals to 12, l is equals to 2, 12 divided by 6, l is equals to 6 2s are 12, so l is equals to 2। this is value of l, right। आई होप स्टूडेंट्स से आपको क्लियर हुआ होगा सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना है। सिंपल m की वैल्यू ली है फ्रॉम 2 और 1 में पुट कर दी है, ठीक है। नाउ दिस इज़ वैल्यू ऑफ l, तो हम क्या करेंगे, l की वैल्यू पुट कर देंगे इन एनी ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, कहाँ लिख लूँ इन इक्वेशंस में, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दूँ या यहाँ लिख लेती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू 2 इन 1, ठीक है। मैं लिख देती हूँ l इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू पुट करें इन 1। तो स्टूडेंट्स मैं 1 में पुट करती हूँ। 1 इक्वेशन क्या थी मेरे पास, दिस इज़ माई 1 इक्वेशन, l की जगह 2 पुट करें इज इक्वल्स टू 10
माइनस एम इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ रहा है, 10 माइनस 8 माइनस एम इज़ इक्वल्स टू 2 और m इज़ इक्वल्स टू -2। मेरे पास क्या हुआ कि m माइनस एम जो है मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, m इज़ इक्वल्स टू -2 और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन। सो दिस इज़ दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ l एंड m। आपने l की भी और m की वैल्यू यूज़ कर ली। आई होप स्टूडेंट्स आपको कंडीशंस अप्लाई करना आई होंगी कि फर्स्ट पॉलिनॉमियल से 0 आ रहा है रिमाइंडर और सेकंड पॉलिनॉमियल से जो रिमाइंडर आ रहा है उसको बुक रिमाइंडर दैट इज़ इक्वल्स टू 36 करना है। एंड देन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय first you will find value of L and then second value of M, right? This is question number 7. Now question number 8. Okay, now question number 8. Question number 8, the expression lx cube plus this minus this leaves remainder of this and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Okay, very simple. Again there are two remainders, वो book के remainders और हम अपने remainders निकालेंगे and we will equate both remainders. ठीक है, उस ऐसी questions आ जाएंगी. Same question number like question number 6, 7, 8 सब में same आपके पास चीज़ आ रही है. प्लीज़ अटेंटिवली सुन लें. एक आपका रिमाइंडर है जो आप वैल्यूज पुट करके निकालते हैं और एक बुक का रिमाइंडर है. आपने उन दोनों को इक्वल करना है, वैल्यू पुट कर देनी है टू गेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अगेन जब आपने ये क्वेश्चन रीड किया तो यू सी देयर आर अगेन टू अननोन एल एंड एम. यू हैव टू फाइंड एल एंड एम. तो देयर शुड बी टू कंडीशन एंड यू हैव सी टू कंडीशंस. क्या है हमारे पास? लेट गिवन में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? गिवन में ऑब्वियसली दिस होल स्टेटमेंट, दिस एक्सप्रेशन लीव्स यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ योर गिवन एंड रिक्वायर्ड में वैल्यू ऑफ एल एंड एम. सोल्यूशन में स्टार्ट कर रही हूँ. लेट p of x इज़ lx क्यूब प्लस mx square minus 4. This is my p of x and leaves remainder of -3 and 12 when divided by x minus 1 and x plus 2 respectively. Students respectively का क्या मीनिंग है कि आप यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है x minus 1, जब x minus 1 की x की वैल्यू ये पुट करेंगी तो then your remainder is -3. means -3 is with your first remainder and 12 is with your second remainder. Okay, is remainder of with your second factor. Okay, -3 is remainder with first factor and 12 is remainder with second factor. This is meaning of respectively. Okay, तो हम पहले क्या करते हैं, हम वैल्यू ले लेते हैं. I have two factors, dividend is there, I have two factors. पहले ये वैल्यू लेते हैं. x minus 1 रफ में देख लिया, x is equals to 1. So putting x is equals to 1 in a, इसको नेम दे दें as जो हम देते होते हैं as usual a. so x is equals to 1. तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास? p of 1 is equals to l into 1 whole cube m into 1 whole square minus 4 l plus m minus 4. so ये हमारे पास आ गया. बट ये क्या है? इज़ डिवाइडेड बाय, कम्प्लीटली डिवाइडेड है. ठीक है, बट गिवन, what is given? This polynomial is divisible by x minus oh no, not given. पहले हम रिमाइंडर बताएंगे. therefore our remainder, ठीक है, therefore my remainders, your remainder is l plus m minus 4. अब हम बुक पे जाते हैं. बट गिवन क्या है? बट गिवन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -3. ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है जब आप इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यस x माइनस 1 इज़ योर डिवाइज़र, उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है. दिस इज़ बुक्स रिमाइंडर. इन 6, 7, 8 सब में ये हो रहा है. आपका रिमाइंडर है और बुक का रिमाइंडर है. दिस इज़ बुक रिमाइंडर. बुक रिमाइंडर इज़ -3 और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? l plus m minus 4. सो आई एम पुटिंग दिस वैल्यू l plus m minus 4 ओवर हेयर. राइट, ये जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है मैंने बुक वाले रिमाइंडर में वैल्यू पुट कर ली. l plus m minus 4 is equals to -3. आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा.
दिस इज़ गिवन. ओके, इसको आप लोग ब्लू मार्कर से लिख लिया करें कंडीशंस को. दिस इज़ कंडीशन ऑफ योर बुक टू फाइंड फर्स्ट इक्वेशन दैट बुक रिमाइंडर इज़ -3. तो हमारा रिमाइंडर जो था आपने उसकी वैल्यू पुट कर ली. नाउ l+4 ट्रांसपोर्ट -4 उधर चला गया. l+m इज इक्वल्स टू 1. दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन. मैं यहाँ लिख लूँ l+m इज इक्वल्स टू 1. राइट. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ होगा. आपने अपना रिमाइंडर निकालना है और बुक का रिमाइंडर. नाउ सेकेंड कंडीशन पे हम चलते हैं. व्हाट इज़ सेकेंड कंडीशन जी? पुटिंग x इज इक्वल्स टू, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है सेकेंड फैक्टर x+2 x इज इक्वल्स टू -2 इन a. आप ये लिख लीजिएगा और दोबारा p ऑफ x लिख लेते हैं तो a में पुट कर लें. l इंटू -2 होल क्यूब m इंटू -2 होल स्क्वायर -4. राइट. सो बल्कि ऐसे करती हूँ, इसको थोड़ा सा इस साइड पे लिखती हूँ सो दैट आई हैव इनफ स्पेस ओवर देयर. p ऑफ -2 होल क्यूब -2 होल स्क्वायर -4. तो ये मेरे पास p ऑफ -2 क्यूब माइनस हैविंग ऑड पार्ट सो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन 8 -8l plus 2 2s are 4 negative having all even parts so plus 4m minus 4. Therefore my remainder, what is my remainder? -8l plus 4m minus 4. This is my remainder. But given remainder, कौन सा रिमाइंडर? गिवन रिमाइंडर इज़ 12. स्टूडेंट्स जो आपकी बुक का रिमाइंडर था, ठीक है. अगेन इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ और यू विल राइट इट विद ब्लू मार्कर. गिवन रिमाइंडर इज़ 12. दिस इज़ बुक रिमाइंडर. देखिए कहाँ गिवन है. उन्होंने कहा है कि जब व्हेन यू डिवाइड x+2 इज़ your divisor and when you divide this expression by this factor तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 12. ये बुक का रिमाइंडर है. my remainder is this one. ठीक है. so I am putting this value. बुक के ये इस रिमाइंडर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ. ठीक है. -8l plus 4m minus 4 is equals to 12. so -8l plus 4m is equals to इज़ इक्वल्स टू, मैं इसको और सिंपल कर लूँ या फिर इक्वली कर लेती हूँ. -8l plus 4m is equals to 16. दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. मैं यहाँ लिख लूँ -8l. इसको आप और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग 4 कॉमन. बट स्टूडेंट्स में ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन इज़ ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन. तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई फ्रॉम सेकेंड कंडीशन. ओके. चलिए. now I am again writing these two equations so that I can explain you substitution method again once again कि थोड़ी सी still कोई confusion है तो आपको clear हो जाए. My first equation was l plus m is equals to 1 and my second equation was -8l plus 4m is equals to 16. This was first and this was second. Now look students, I am using here again substitution method. Students, there are other methods like by comparison method, by making their coefficient same. ठीक है. आप इन इक्वेशन को उन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. बट आई एक्सप्लेन यू ओनली वन मेथड. ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन 7 बाय सब्सटीट्यूशन से करूँ, 7th 6 जो है वो मैं बाय कंपैरिजन से कर रही हूँ, 8th में बाय इक्वेटिंग बाय मेकिंग कोफिशिएंट सेम. ठीक है. मैं वो काम नहीं करी. एक ही मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ इन एवरी क्वेश्चन सो दैट यू पीपल हैव वेरी गुड कमांड ऑन दिस सब्सटीट्यूशन मेथड. ओके. सो व्हाट इज सब्सटीट्यूशन मेथड? सब्सटीट्यूशन मेथड इज अगेन यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एनी अननोन फ्रॉम 1 और 2 एंड कोशिश करें दैट द कोफिशिएंट ऑफ दैट अननोन शुड बी 1. तो यहाँ देखिए l की भी 1 कोफिशिएंट है और m का भी है. हम l और m दोनों में से किसी की वैल्यू ले सकते हैं. इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ 8 4 बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं. तो मैं यहाँ लिखती हूँ
फ्रॉम 1, 1 से मैं किसकी वैल्यू लेती हूँ, एल. डू मेंशन दिस, ठीक है, क्या 1 से ले रहे हैं या 2 से ले रहे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. एल क्या आ रहा है, एल को मैंने वहीं छोड़ा, 1 भी वहीं पर है, m उधर चला गया on the right transportation. When I shift this plus m to the other side, it becomes minus m, right. So क्या करना है, putting value of L in 2. सेकेंड इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है. तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ रही है मेरी, -8. व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ L, ये L की वैल्यू थी, तो -8 माइनस माइनस +8m इज इक्वल्स टू 16. तो ये क्या आ जाता है, 8 9 10 11 12, 12m इज इक्वल्स टू 16. ट्रांसपोर्टेशन 16 प्लस 8 और 12m, 16 प्लस 8 इज 24, m इज इक्वल्स टू 24/12, m is equals to 2. So m is equals to 2. This is value of m, right. I hope students, now you can solve any two equations by substitution method. Very simple. First से value ली है तो always put in second, और second से value ले रहे हैं तो first में put करनी है. So this is value of m is equals to 2. अब यहीं पर मैं किसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, रेस कर देती हूँ. ये तो m की वैल्यू के लिए सारा काम था, ठीक है. अब मैं यहाँ पर इक्वेशन से यहाँ से ऑनवर्ड में लिख रही हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 2 इन, कहाँ पुट करनी है, 1 में पुट कर लें. सो l प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो l इज इक्वल्स टू -1. रिक्वायर्ड जो हमारा था, l और m दोनों की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है. द वैल्यू ऑफ l इज़ -1 एंड द वैल्यू ऑफ m इज़ 2. ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. Now last question, question number 9. The expression ax cube minus 9x square plus bx plus 3a. Yes, this is the expression. Ax cube plus minus 9x square plus bx plus 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. Find the values of a and b. Okay. Students, in this question they don't give you linear factors. Okay, in all question from question number 1 till question number 8th, in all question you can see or you can check the divisor is your linear factor. That is linear factor. What is linear? Have x having power equation having power 1. जो भी था वो ये था 2x minus 12 या x minus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 2, x minus 3, ये सब आपके पास डिवाइजर्स आ रहे थे हैविंग इक्वेशन डिवाइजर्स. और लीनियर कैसे फैक्टर्स होते हैं, दे आर हैविंग द पावर ऑफ x इज 1. ये देखिए x की पावर 1 आ रही है. बट लुक इन दिस क्वेश्चन द डिवाइजर इज एग्जैक्टली divisible by this. Your divisor is in quadratic form or it is having equation power 2. So power 2, you know, you can factorize it by midterm breaking. So your first step is to find linear factors by using midterm breaking. Okay, पहले factors देख के उसके बाद हम आगे चलते हैं. यहाँ पर linear factors नहीं है. So what is given in your question, given is expression this is exactly divisible by this one, this is given, and find the values of a and b. इनकी values निकालनी है. कंडीशंस पे बाद में चलते हैं. सोल्यूशन में हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है. फैक्टराइजेशन ऑफ क्या आएगी स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस. सो x कॉमन ले लें. मिड टर्म ब्रेकिंग आई हैव डन ओवर हेयर मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है. So minus 3 2s are 6, x minus 2
x minus 3 ये मेरे पास आ गया. So I got these two linear factors x minus 2 and x minus 3, right. अब हमने क्या करना है, x minus 2 and x minus 3. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन ये कहता है द एक्सप्रेशन दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय these two factors. Okay, exactly divisible. In one of your question of this exercise you have done what is meaning of exactly divisible. Exactly divisible means your remainder is 0. Okay, let's suppose 6 is exactly divisible by 2. How? Because 2 3s are 6, its remainder is 0, right. This is meaning of exactly divisible when your remainder is 0. So what is your plan or what is your summary? Is that first you will put this value, okay, in this dividend और उसका remainder 0 करेंगे, then इसकी value लेके put करेंगे और remainder 0. ठीक है, I am using these two factors. इसको हम 1 by 1 put करेंगे. तो let p of x ax cube bx plus 3a. ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, मैं रफ में x माइनस 2 को 0 करती हूँ. पहले आप स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर लेंगे, ओके, डिवाइज़र, ये डिवाइज़र लेंगे. x2 पुट कर लेते हैं, नेम इट एज a इन a. तो क्या बन जाएगा मेरे पास, p of x is equals to 2 whole cube minus 9 into 2 whole square plus 3a. ये मेरे पास है a. अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ. फैक्टर मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइड पे, x माइनस 3 फैक्टर था. ओके, चले, p of x is equals to 2 cube क्या आ जाएगा 8a minus 2 2s are 4, 4 9s are 36 plus 2b plus 3a. Okay students, when I put x is equals to 2, my answer is this one, p of 2 यहाँ भी लिख लीजिएगा. Therefore remainder, what is your remainder? Remainder is equals to my remainder. Oops, yeah, no, abhi I have to solve it. P of 8a plus 3a minus 36 plus 2b. So p of 2, 8 9 10 11, 11a, b पहले लिख लें, plus 2b minus 36. Okay, 11a plus 2b minus 36. Therefore my remainder is 11a plus 2b minus 36. This is my remainder. But क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, मैं रिमाइंडर अपना यहाँ लिख लूँ, 11a plus 2b minus 3 minus 36. क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स, बट गिवन ये कह रहा है दैट पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय that p of x is exactly divisible by x minus 2. Therefore exactly divisible में क्या होगा आपके पास, remainder is equals to 0. तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, my remainder was 11a plus 2b minus 36 is equals to 0. 11a plus 2b is equals to 36. ठीक है, मैंने अपने रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कर लिया. दिस इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन. सो इज़ इक्वल टू 36. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नाउ कम टू इट्स सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं. सेकेंड कंडीशन वाज अगेन you have p of x is this bx plus 3a. अब हमने क्या करना है, पुटिंग x, क्या फैक्टर आ रहा था, x माइनस 3 आ रहा था, सो x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 इन a. दिस वाज माय a, राइट. वही वैल्यू पुट कर लेती हूँ, p of 3a 3 होल क्यूब 3 होल स्क्वायर प्लस 3a. So a into 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27a minus 3 3s are 9, 9 9s are 81 plus
3b, b of 3, b of 3, a, you have a, okay. So 27a plus 3a प्लस 3b माइनस 81, मैंने a और b को लिख लिया और 81 को उधर. सो 27 28 29 30, तो ये क्या आ जाएगा 30a प्लस 3b माइनस 81. दिस इज़ p ऑफ 3. ओके, दिस इज़ माई रिमाइंडर. मैं यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ. व्हाट इज़ माई रिमाइंडर? मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा था स्टूडेंट्स? माई रिमाइंडर वॉज my remainder is 30a plus 3b minus 81. This is my remainder. But given, what is given? That expression p of x is exactly divisible by x minus 3. Therefore remainder is equals to 0. You know what is meaning of exactly divisible? Remainder 0 होना चाहिए. Okay, do write with blue mark और अंडरलाइन. रिमाइंडर 0 है. तो रिमाइंडर क्या था हमारा? रिमाइंडर आ रहा था स्टूडेंट्स 30a प्लस 3b माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से देखते हैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ मैं. यस 3 10a प्लस b माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0. as 3 is not equal to 0, therefore 10a plus b minus 27 is equals to 0. right. और यहाँ से मैं नेम दे देती हूँ 10a plus b is equals to 27. दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन. सो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई बाय पुटिंग दीज फैक्टर्स इन वन बाय वन इन पॉलिनोमियल and applying conditions. तो मेरे पास सेकेंड कंडीशन आ गई. सो आई हैव 2 इक्वेशंस. मैं दोबारा लिख रही हूँ. फर्स्ट वॉज 11a plus 2b is equals to 36 और सेकेंड वॉज 10a plus b is equals to 27. equation 1 and equation number 2. Again applying again I'm using substitution method to find the value of b. Look, in first equation coefficient of a is 11, coefficient of b is 2, so I can take the value of a and b, but it's difficult, so I'm using second equation में देखें a की value 10 आ रही है and b की value 1. so from 2, ठीक है. सेकेंड इक्वेशन से मैं b की वैल्यू ले रही हूँ. b को अपनी जगह पे रखें. 27 व्हेन आई शिफ्ट प्लस 10a टू द अदर साइड माइनस 10a. पुटिंग इन, कहाँ पुट करना है? पुटिंग इन 1 में पुट कर देते हैं. 1 इक्वेशन पहले लिख लें. तो यहाँ क्या आ जाएगा 11a 2 into 27 minus 10a is equals to 36. इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पर. तो ये आ जाएगा 11a प्लस 27 2 times 54 minus 20a is equals to 36. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा 11a minus 20a 36 minus 54, 11a minus 20a minus 9a is equals to 36 minus 54 18. so a is equals to minus 18 by minus 9. a is equals to 2. this is value of a. ये तो a की वैल्यू आ गई थी, तो हम क्या करेंगे? put this value of a in any one of these equation. so क्या आ जाएगा? putting value of a is equals to 2 in 1 में पुट कर लेते हैं. 11 into 2 22. so 2b is equals to 36 minus 22. 36 minus 22, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है?
2b is equals to 3 or 1 to 1 idea, or 6 to 14. So 36 minus 22 plus 14 greater value, 14 by 2, b is equals to 7. So this is value of b is equals to 7 rn. Okay, this is last question of your exercise 5.3. With this question your exercise 5.3 is completed. Okay, I hope students you can now you can understand this, what is remainder theorem and what is vector theorem. With this okay students, take care. Allah Hafiz.